Good morning everyone, welcome to EduTap and welcome to the today's top 50 MCQs session on EduTap, in which I'm going to discuss the top 50 MCQs from the first week of September 2022. So guys, this is the part 1 of this particular series in which I will be discussing the top 50 MCQs of the last 1 week. As you all know that this particular session is basically for the revision of the past 1 week that you have covered in the fast track session videos which are being uploaded daily basis on our YouTube channel. Okay? So guys, today I'm going to discuss the top 50 general awareness MCQs which are really relevant from the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam, and I really believe that all of you are really done and you have done superbly in your NABARD Grade A prelims exam. So guys, we all know that what exactly is the importance of the general awareness section. Now, before beginning this particular session, if you are new to your YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of the sessions. So, हमारे इन सभी sessions की जो PDF है, if you want to get that PDF, you are required to join our Telegram channel, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है. ठीक है. Now before beginning this session, there is a very important thing that while answering the questions in the comment section, what you are required to do, you are also required to calculate your score. See how much score you have got in this particular session, and after the end of the session you are gonna tell me in the comment section that what exactly was your score in this particular session. ठीक है जी. So we are going to discuss top 50 MCQs from the past 1 week of the September 2022. So let's begin the session with the very first question, and the very first question is, recently which of the following airlines has joined the World Economic Forum's Clear Skies for Tomorrow campaign? ठीक है जी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लियर स्काई फॉर टुमारो कैंपेन है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अब आपको मुझे बताना है उस एयरलाइन का नाम जिसने रिसेंटली उसको ज्वाइन किया है. इज इट एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया और विस्तार? सो गाइस, ऐसे जो हमारे मेजर कैंपेन्स हैं, वंस अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि क्लियर स्काई फॉर द टुमारो कैंपेन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, और रिसेंटली वन ऑफ द एयरलाइन ने इसको ज्वाइन किया है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट एयरलाइन? That is basically Indigo. So guys, here you can see that basically to help the aviation sector move towards the net zero carbon emission, this particular campaign has been launched and Indigo has joined this campaign of the World Economic Forum. So guys, moving on to the next question. Now the next question is 10th National Maritime Search and Rescue Exercise, that is SAREX 2022, has been conducted by which of the following forces? See, defense forces, defense exercises are really very important. There was the question on pitch black exercise, that which country has hosted the pitch black exercise which was held recently? The answer to it was Australia. ठीक है जी. तो आपको पता होगा कि नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, and that is the reason that why such kind of exercises are really very important to be remembered from the exam point of view. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसके डायरेक्टर जनरल का नाम भी आपको पता होना जरूरी है, दैट इज वीएस पठानिया. ठीक है जी. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए whenever you are covering any kind of such kind of organization and you find that in the news article, always seek to find that who is the head. For example, here the Director General of the Indian Coast Guard is VS पठानिया जी. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, it was conducted by Indian Coast Guard. उसकी लोकेशन क्या थी? चेन्नई, तमिलनाडु. ये भी आपको याद रखना है. क्यों? जैसा कि आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने इसको कंडक्ट किया था. दैट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक विच वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है. तो आज के सेशन में ना हम सी ऑल्दो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ रैपिड फायर सेशन, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि जो नाबार्ड का एग्जाम है किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, जो सेशन में आज के सेशन में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. सो गाइस, हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम, दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज द थीम ऑफ द एक्सरसाइज, इट वाज capacity building towards marine passenger safety. That was the theme of this particular exercise named as SAREX 2022. So I hope this is clear to you. Moving on to the next question. So guys, now the next question is, NABARD has sanctioned the financial assistance of Dash for Mizoram for the approval of the rural infrastructure projects. तो NABARD ने कुछ financial assistance announce किया है, and this financial assistance which has been approved of the rural infrastructure projects, this was under the
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द नाबार्ड एग्जाम विच हैज जस्ट हैपन रिसेंटली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं RIDF की। सो इट वाज क्रिएटेड इन नाबार्ड इन ईयर 1995 टू 96। ठीक है, इसका इनिशियल कॉर्पस क्या था गाइस? इसका इनिशियल कॉर्पस था ₹20,000 करोड़। और जब हम बात करते हैं 2021-2022 के एलोकेशन की, इट वाज ₹40,000 करोड़। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, देयर आर टोटल 39 एलिजिबल एक्टिविटीज अंडर द RIDF, जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। व्हाट एग्जैक्टली दीज 3 कैटेगरीज आर? फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है जी, सेकेंड थिंग इज सोशल सेक्टर, एंड द थर्ड थिंग हियर इज द रूरल कनेक्टिविटी। तो यहां पर ये सभी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन इन द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि इसे, ये तो हो गया आपका इस पर्टिकुलर RIDF के बारे में थोड़ा स्टैटिक पार्ट। अब जब हम बात करते हैं कि इसको करंट अफेयर से कैसे रिलेट किया जाए, क्योंकि देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जाम ऑन सच काइंड ऑफ लाइंस एज वेल। तो जब नाबार्ड ने अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है मिजोरम को, क्यों किया है? फॉर द अप्रूवल ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द RIDF। तो इसका अमाउंट क्या था? its amount was rupees 230 crores. ठीक है जी, so I hope that this is very much clear to all of you guys. So these are the kind of details that you are required to seek to in order to prepare really well for the exam. ठीक है, moving on to the next question. So which of the following banks has launched the new महाधन वर्षा फिक्स डिपॉजिट स्कीम? सो कौन से बैंक ने की थी? काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी हलवा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड हियर द राइट आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been awarded the UNESCO Peace Prize 2022? A very important question. See, here you can see that in the NABARD grade exam as well, there was a question on the Global Energy Prize. There was an Indian professor who has won this Global Energy Prize. तो इस तरीके की जो prizes, जो awards दिए जाते हैं, they are really very important from the exam point of view. ठीक है, तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड आई रियली बिलीव कि आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। दैट इज ऑप्शन ए, एंजेला मर्कल, हु इज द फॉर्मर जर्मन चांसलर। तो जब हम बात करते हैं कि बात हो रही है जर्मन चांसलर की, तो प्रेजेंट जर्मन चांसलर कौन है? इट इज बेसिकली ओलाफ Scholz. ठीक है जी, सो ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज अ जर्मन चांसलर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट, जब जर्मनी आपकी यहाँ पर आ चुकी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो क्या हमें जर्मनी की कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए? एग्जैक्टली, डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। तो जर्मनी की जब हम बात करें कि कैपिटल क्या है, इट इज बर्लिन, और currency you are going to tell me, this is a homework for you, you are going to tell me in the comment section that what is the currency of Germany. ठीक है जी, moving on to the next question now. So the question is on the 27th Badminton World Federation World Championships 2022 which has been held in Tokyo, Japan. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी चैंपियनशिप वो कहाँ पे हुई है? Now the question is which of the following countries has topped the medals tally with the 5 medals? So कौन सी कंट्री ने इसको टॉप की है? So it was basically China which has topped this particular championship with a टोटल ऑफ 5 मेडल्स। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का भी यहाँ पर काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है दैट इंडिया हैज गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस डबल्स। और प्लेयर्स के नाम क्या क्या हैं? दैट इज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो यहाँ पर आपको ये सभी चीजें याद रखने की जरूरत है। और इसी तरीके का अगर मैं इसको कंपेयर करूं फ्रॉम द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, देयर वाज द क्वेश्चन की ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो दैट इज द रीजन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ डायमेंशंस आल्सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हैज बीन हेल्ड इन सोफिया, बुल्गारिया। तो इंडिया ने उसके अंदर कितने मेडल्स जीते थे? सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। सी गाइस, जो आपका रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के बेस पर हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए इन सभी सेशंस के अंदर। और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो इसके अंदर इंडिया हैज वन द टोटल 16 मेडल्स। हियर यू कैन सी द कंपोजिशन 11 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर एंड 1 गोल्ड। बट इसके अंदर टॉप किसने किया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर, दैट इज ईरान। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now you are required to tell me the name of the bank which has partnered with the Athletic Federation of India to support young women athletes in India. तो इंडिया के अंदर young women athletes को support करने के लिए कौन से बैंक के साथ partnership की है? And here it is HSBC Bank. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Moving on to the next question. Now the next question is on the CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना. तो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी कि कौन सी वो स्टेट है जिसने इस पर्टिकुलर योजना को लॉन्च किया. दैट इज चीफ मिनिस्टर उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना. एंड गाइस हियर द नेम ऑफ दैट स्टेट इज उत्तराखंड. ठीक है जी, तो यहां पर आप देख सकते हो अदर की डिटेल्स जो एग्जाम के अंदर जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज टू प्रोवाइड अ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऑफ ₹1500 पर मंथ टू बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 8 to 14 ईयर्स. तो 8 से 14 साल के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 1500 पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी. एंड दिस अमाउंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. नाउ गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is on the report. The name of that report is Globalize to Localize Exporting at Scale and Deepening the Ecosystem which are vital to the higher domestic value addition. And you are just required to tell me कि इस report को prepare किसने किया है. See guys, whenever you are covering the reports and this is the very first dimension that you are required to cover is the releasing body of that particular report. And after that you all know that what exactly are the other 4 dimensions. That is the framework of the report, then important findings, important rankings, recommendations. तो ये सभी डायमेंशंस आपको करनी है. तो पहली डायमेंशन पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. एंड हियर गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. दैट इज बोथ ICRIER एंड ICEA, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड द इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन. अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपको याद रखनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या है वो फाइंडिंग? कि ये जो रिपोर्ट है इट बेसिकली शोज अस द वे कि इंडिया किस तरीके से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का टारगेट है USD $300 बिलियन और जो एक्सपोर्ट्स हैं $120 तक उसको ले जा सकता है बाय ईयर 2025-2026. सी गाइस, दीज काइंड ऑफ टारगेट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये टारगेट क्या है और साथ में किस ईयर तक वी आर बेसिकली एमिंग टू अचीव, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following states has launched India's first virtual school? तो इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल कौन सी स्टेट या यूटी है इनमें से जिसने इसको लॉन्च किया है? एंड गाइस रिसेंटली दिस डेवलपमेंट हैज बीन हैपेंड एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? The name is obviously Delhi, which has also come up with such kind of university. टीचर्स यूनिवर्सिटी. सो गाइस जब हम बात करते हैं दिल्ली की, सो दिल्ली ने यहाँ पर लॉन्च किया है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल विच इज एफिलेटेड विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. अब यहाँ पर हम बता दें आपको दैट इट इज द इंडियाज फर्स्ट सच प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे देश से दे विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन फ्रॉम any corner of the country. The people can take admission and they will be eligible to take admission in this Delhi Model Virtual School. A very good initiative which is being taken by the Delhi. Now guys, let's move on to the next question. So now the next question is, how many Indian startups have been featured recently in the Forbes Asia 100 to watch list? तो basically कितने हमारे ऐसे Indian startups थे जो कि Forbes Asia 100 to watch list में थे? And here the right answer is 11 and the name of all those 11 startups are being mentioned here. For example, Turtle Sense, Gramheet, Bijak, Animal, AgroStar, Pocket FM, Euler Motors, Spark Plus, FRND, Business and Go Quick. So these are the name of those 11 startups who have featured in the Forbes Asia 100 to watch list. So guys, now the next question, which of the following state governments has launched e-governance portal समर्थ? तो यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि रिसेंटली एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है समर्थ, जो कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में एडुकेट करेगा और उसकी फैसिलिटीज के बारे में बताएगा. तो यहाँ पर उस स्टेट का नाम क्या है जिसने इसको लॉन्च किया है? एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज उत्तराखंड. ठीक है जी, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है. व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट? इट इज टू प्रोवाइड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन अपडेट्स. तो कौन कौन सी अपडेट्स ये देता है, लोगों को प्रोवाइड करता है? That is basically information about the entrance exams, then salary structures, appointment from the 5 state universities. जो universities हैं उत्तराखंड के अंदर 5 state universities हैं, उसके अंदर appointments और बाकी के जो public schools हैं उसके ऊपर. बट यहाँ पर सबसे important चीज़ क्या है? The name of the state which has launched this portal, that is समर्थ. तो समर्थ याद रखना है, उसका मेन पर्पस याद रखना है और किस स्टेट ने लॉन्च किया है इसको याद रखना है.
Let's move on to the next question. So the next question is on the Shokovi railway station which has been inaugurated on the Dhansari Shokovi railway line. तो ये बेसिकली ये आपका कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ है ये आपको मुझे बताना है. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सी this railway station is just the second railway station in that particular state almost after 103. That is, our last station was established there in 1903, that is दीमापुर स्टेशन. ठीक है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 100 years this particular station has been established in that particular state and the name of that particular state is Nagaland. ठीक है, तो दीमापुर स्टेशन आप देख सकते हो it was opened in 1903 और यहाँ पर ये हमारा नया रेलवे स्टेशन है which has been established. That is why it is important to be covered. Now guys, the next question, Indian Railways ने recently setup किया है मेघदूत machines. यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं मेघदूत मशीन की. आपको मुझे बताना है कि पर्पस क्या था. What exactly is the purpose of coming up with this initiative that is the मेघदूत machine? So here the options are that is कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए या फिर जो वाटर वेपर्स हमारे एयर के अंदर है उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. नाउ द थर्ड ऑप्शन इज टू प्रोवाइड कॉन्टैक्टलेस टिकट वेंडिंग फैसिलिटी, देन लाइव ट्रैक फीड ऑफ द ट्रेन्स और नन ऑफ द अबव. सी गाइस, हियर यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर initiative which has been taken by the Indian Railways and it has been set up. तो यहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हो कि मेघदूत. ठीक है, दैट मीन्स समथिंग लाइक अ क्लाउड, दैट इज मेघ. तो यहां पर जो आंसर है it is basically to convert water vapors in the air into the potable water. That is what is the right answer to this question. So question number 16 guys, which of the following companies has partnered with the IME India to provide money transfer services to Nepal? तो जो हमारी मनी ट्रांसफर सर्विसेज है नेपाल के अंदर उसके लिए कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है IME इंडिया ने? तो guys, here the right answer to the question is Muthoot Fincorp. Now the next question, which of the following has been the theme of the CERT-IS Cyber Security Exercise Synergy? तो recently एक Synergy नाम की exercise को यहाँ पर launch किया था CERT ने, and you are just required to tell me that what exactly was the theme of that kind of exercise. See, whenever such kind of exercises are being taken, उसकी theme क्या है, purpose क्या है, कौन launch कर रहा है, that is very important dimension that you are required to cover. And here guys, the right answer is building network resilience to counter ransomware attacks. So this is basically the theme of this particular exercise, that is synergy. So now please tell me that in which Indian state the Nuakhai festival is being celebrated. So guys, here the name of 5 states are being mentioned. You are just required to tell me the name of the state where the Nuakhai festival is being celebrated, and here the right answer is Odisha. So guys, see, ऐसे जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स द्वारा, यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है जी, तो यहां पर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE, has partnered with which of the following companies to advance the digital literacy in India? Once again, this is a question from the social structure in India education, social sector in India एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ऑल इंडिया काउंसिल AICTE ने रिसेंटली डिजिटल लिटरेसी को और ज्यादा एडवांस करने के लिए इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है? सी, दीज काइंड ऑफ MOUs आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या था कि गूगल ने 360 डिग्री व्यू, स्ट्रीट व्यू देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप की है? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. सो हियर द राइट आंसर इज अडोब. सो क्या जब हम बात करते हैं अडोब की, तो अडोब आपको पता है कि इट इज बीइंग हेडेड बाय इंडियन, दैट इज द CEO ऑफ अडोब इज बेसिकली इंडियन. एंड हु इज द CEO ऑफ अडोब? इट इज शांतनु नारायण. ठीक है जी, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ टेल मी दैट हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया. सो यहां पर आप देख सकते हो कि RBI के एग्जाम के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन कि गूगल ने जो इंडियन हेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं. तो इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. तो इसी तरीके से ऐसी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो भी रिसेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आपको याद रखना जरूरी है. एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज संतोष अय्यर, and he is going to replace Martin Schwenk. ठीक है जी. Now moving on to the next question. The question is Alappuzha has become dash fully digital banking district in Kerala. तो Alappuzha एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर. तो ये बेसिकली डैश फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बना है केरला का. एंड हियर द राइट आंसर इज 5th. तो Alappuzha has recently become the 5th fully digital banking district in Kerala.
Now the next question is, which of the following has been the theme of the National Nutrition Week 2022 observed in September 2022? ठीक है जी, तो जब भी आपके पास यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑफ द वीक्स और द डेट्स, तो यहां पर आपको क्या करना है, दैट इज डेज। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरेशन या फिर डेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द थीम। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है इट इज ऑन द डायमेंशन ऑफ द थीम, कि बेसिकली थीम क्या थी नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 की। द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक ऑफ सेलिब्रेशन यू आर गोना टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, अभी जब हम बात करते हैं कि थीम क्या थी, सो गाइस हियर द थीम वाज सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स व्हिच वाज द थीम ऑफ दिस। एंड हियर गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज द ड्यूरेशन, इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, दैट इज September 1 to September 7। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, India's GDP for the quarter 1 in the fiscal 2023 rose -% from 20.1% in the quarter 1 of the fiscal 2022। सो यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि 20.1% से कितना वो इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज वो बढ़ा है। एंड हियर द राइट आंसर इज 13.5%। ठीक है जी, सो नाउ गाइस क्विकली टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which have replaced the Life Insurance Corporation of India, because Life LIC is now no longer a part of the top 10 companies by the market capitalization। तो उसको कौन कौन सी वो कंपनीज है जिसने उसे रिप्लेस किया है, दैट इज व्हाट यू आर गोना टेल मी। इज इट बजाज फाइनेंस, अदानी ट्रांसमिशन, एशियन पेंट्स A and B और B and C? And here the right answer is both A and B, that is Bajaj Finance and Adani Transmission, who have together replaced Life Insurance Corporation of India। Now the next question, now you're gonna tell me the name of the state which has launched the rural backyard piggery scheme। तो यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उनकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ सके, इस तरीके के लिए उन्होंने एक रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को लॉन्च किया है। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट स्टेट व्हिच हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्कीम। एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज मेघालय। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन लॉन्च। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, 4 पिगलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स टू प्रमोट पिग ब्रीडिंग। तो पिग्स की ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर 4 पिगलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को। ठीक है जी, और ये किसके अंदर है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम मेंस के अंदर, यहाँ पर ऐसे जो स्कीम्स हैं स्टेट स्कीम पर भी कोई ना कोई छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। सो यू मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Now guys, moving on to the next question. Now the next question is, Cabinet Committee on Security has recently approved Tejas Mark II fighter jet project. Now the CCCS has approved -crore for the prototypes flight testing and certification। तो कितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पर अप्रूव किया है इसके लिए, दैट इज व्हाट यू आर गोना टेल मी। इज इट्स 5,000 करोड़, 9,500 करोड़, 6,500, 10,500 और रुपीज 8,000 करोड़। सो बेसिकली यू आर गोना टेल मी इन द with the value of crores, and here the right answer is 6,500 crores। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस उसने यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन को स्लैश किया है। एंड यू आर गोना टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियाज न्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन। एंड हियर द राइट आंसर इज 7.7%। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द CMIE रिपोर्ट, दैट इज द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी अगस्त के अंदर, इट हैज सर्ज टू अ 1 year हाई ऑफ -%। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पर्टिकुलर परसेंट? सी, ऐसा जो भी डेटा है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो नाबार्ड के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसके बाद वुमेन का कितना पोर्शन है, दैट वाज आल्सो आस्क्ड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो पैरामीटर्स हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज 8.3%। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, इट वाज हायर एट अबाउट 8% देन द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हिच वाज अराउंड 7%। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये हाईएस्ट कहाँ पर था, इट वाज हाईएस्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, दैट वाज 37.3%। और लोवेस्ट की जब हम बात करें, इट वाज इन छत्तीसगढ़ विद 0.4%। सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सच काइंड ऑफ न्यूज
articles. Now moving on to the next question. The next question is on exercise Vostok 2022. So involving troops from the several countries, it has taken place in which of the following countries? Once again the question on the similar lines, that was the pitch black which was asked in the NABARD grade exam. So guys, quickly tell me that what is the right answer to this question. So here you are just going to tell me the country which has hosted this exercise Vostok 2022, and that is Russia. ठीक है, तो India is also participating in that. Location है Russia. The name of the exercise is exercise Vostok 2022. Now tell me that which of the following companies or banks has recently launched industry's first cashback card. See guys, one of the Indian organization has recently launched a cashback card, and this is one of the industry's first of its kind card, ठीक है, which is going to give you 5% cashback on the online purchases. So these are some distinct features of this card, but you are just required to tell me the name of the company which has come up with this kind of card. This is a typical banking question, ठीक है. So here guys, the right answer to the question is SBI Cards and Payment Service Limited, और उस कार्ड का नाम क्या है? It has cashback SBI card. Now Raymond Magsaysay awardees, see guys, a very important part. So now you are going to identify the winners of the Raymond Magsaysay awardees for the year 2022. So please tell me in the comment section. See, a very important part. When I talk about the Raymond Magsaysay award, it is basically considered as Asia's Nobel Prize. ठीक है जी. And why exactly it is being given, that is also very important, but I am going to discuss everything with all of you. Do not worry about it. First of all, you are going to tell me कि इसमें से कौन है वो person जिसको Raymond Magsaysay award यहाँ पर मिला है for the year 2022, and the right answer is all of the above. That is Sodhera Shim, who is basically from Cambodia. See, he is the person who helped the Cambodians, the fellow Cambodians, to come out from the trauma. ठीक है. Then we have Bernard Madrid, who is from the Philippines. We have Tadashi Hattori from the Japan, and Gary Benshif from Indonesia. So these are the winners of the Raymond Magsaysay Award 2022. और जब हम बात करते हैं इस award की, guys, here you can see that there is a name Raymond Magsaysay. So this name is basically the name of the Philippine president, and this award is being named after the Philippine president who basically died in a plane crash. ठीक है, in a plane crash. So guys, यहाँ पर जब हम बात करें कि इसको दिया क्यों जाता है, it is basically given to honor the greatness of spirit and the selfless service to the people of Asia. So यहाँ पर हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद कर ली हैं. मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूं कि इनके नाम के अलावा आपको इनकी कंट्रीज भी याद करनी है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है, और उसके अलावा कि ये किसके नाम पे बेस्ड है, दैट इज Raymond Magsaysay, द फिलिपिन प्रेसिडेंट. Now guys, moving on to the next question. The next question is on the Goldman Sachs, which has recently cut India's full year 2022 GDP growth forecast to -% from 7.6%. Once again, a question on a very similar lines. Normally it is being just asking that what exactly is the present India's growth rate as per the Goldman Sachs, and here the right answer is 7.0%. that is the 7%, and it has been reduced from 7.6%. ठीक है जी. Now the next question. A.R. Rahman has been honored by naming a street after him in Markham. तो मरखम कौन सी कंट्री के अंदर है? तो ऐसा कभी भी किसी को ऑनर किया जाता है, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि भाई वो जो प्लेस है जिसका नाम लिया गया है वो कौन सी कंट्री के अंदर है, एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज कनाडा. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द न्यू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट? सी वी ऑल नो कि फीफा ने रिसेंटली इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर बैन लगा दिया था, और इंडिया को भी बैन लगा दिया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एनी सच काइंड ऑफ इवेंट विच वाज बीइंग कंडक्टेड बाय द फीफा. बट यहाँ पर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कौन रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, एंड हियर द राइट आंसर इज कल्याण चौबे. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड टू एलोकेट रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टू द CAPS पर्सनल? तो CAPS पर्सनल के लिए यहाँ पर रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि उन्हें एलोकेशन में मदद मिले रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की, एंड द नेम ऑफ दैट पोर्टल इज CAPF e-Awas. ठीक है जी. Moving on to the next question. So the next question is on the World Coconut Day. So guys, see, in these kind of questions, no, there is not any kind of explanation here. So we are just moving through these kind of questions. ठीक है. तो World Coconut Day की जब हम बात करते हैं, it was basically celebrated on the 2nd of September. और उसकी theme क्या है? That I already told you. There are two important things. The first one is the date. Second one is the theme. तो theme for the World Coconut Day was growing coconut for a better future and life. ठीक है जी. Moving on
on to the next question. So the center has recently approved Parivar Kalyan card, which is a family ID plan launched by which of the following states? So just gonna tell me the state, the name of the state which has approved the Parivar Kalyan card, and here the right answer is Uttar Pradesh, and this is going to give a 12-digit card which will help the state government keeping a track on the government scheme benefits received by a family. तो पूरा उनको ट्रैक रिकॉर्ड रखने में हेल्प करेगा this card. The name of that card is Parivar Kalyan card. Now the next question. So which of the following companies has partnered with the IIT Madras Incubation Cell to accelerate future mobility solutions? तो future mobility solutions के लिए IIT Madras Incubation Cell के साथ कौन सी कंपनी ने यहाँ पर MOU साइन किया है? I always tell you where there is a MOU, there is a name of the parties and there is a aim to signing that particular MOU. तो aim यहाँ पर already दिया हुआ है to accelerate the future mobility solutions. What is the name of the party? One party is IIT Madras Incubation Cell and the second is Daimler India. ठीक है जी. Moving on to the next question, guys, and the next question is from a very important index which is released by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. What is the name of that index? That index is the Grievance Redressal Index. तो guys, Grievance Redressal Index को publish किया है Department of Administrative Reforms and Public Grievances ने. आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है या वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कि टॉप किया है among all the ministries and the departments for resolving public grievances. ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं that CP ग्राम, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व कराया है और जिसने रिजॉल्व कराया है दैट इज द विनर. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द विनर इज? द विनर इज UIDAI which has topped in the grievance redressal index during August 2022 and it has been a top performer in the resolution of the cases for centralized public grievances redress and monitoring system. So guys, moving on to the next question. IndusInd Bank has recently partnered with Asian Development Bank to promote supply chain finance solutions in India. The initiative will have an initial outlay of, तो क्या उसका outlay होगा? See guys, a very important part, ऐसे जो भी outlay होते हैं या फिर कोई ऐसा MOU साइन होता है या फिर लोन अग्रीमेंट साइन होता है, you are required to remember about that. For example, in the NABARD grade exam there was a question कि वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया फॉर सपोर्टिंग इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम. ठीक है जी, तो यहां पर आपको अमाउंट बताना था और उसी लाइन पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. तो ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज $70 million. That is rupees 560 crores. Now moving on to the next question. RBI has launched a pilot project for the digitalization of lending under the Kisan Credit Scheme in the Madhya Pradesh and Tamil Nadu. ठीक है जी, तो हमें पता चला इसकी किसान क्रेडिट स्कीम को यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से करंट अफेयर से रिलेट किया है. Here the question is कि आरबीआई ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट, कौन सी स्टेट में लॉन्च किया? मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में. तो here the question is the project has been developed by which of the following organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया है? That is what you are gonna tell me. And here guys the right answer is Reserve Bank Innovation Hub. तो इसका बेसिकली यहाँ पर एम क्या है? दैट इज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम. तो गाइस जब हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. सो KCC इसको लॉन्च कब किया गया था? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं. इट वाज लॉन्च इन ईयर 1998. 1998 के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था. एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज द एम ऑफ दैट? टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट. ठीक है जी, टाइमली क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो उसको टाइमली परचेज कर सकें, विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन ऑर्डर टू परस्यू देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ठीक है जी, जब हम बात करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, देन वी हैव स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं. सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द सेशन on the scheme, this Kisan credit card scheme on the YouTube channel as well. ठीक है. Now moving on to the next question. Now you are going to tell me the name of the country which has been overtaken by India recently and to become the world's fifth largest economy. तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया ने रिसेंटली एक इकोनॉमी को ओवरटेक किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री? द नेम इज यूनाइटेड किंगडम. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे. व्हाट एग्जैक्टली इज द डेट ऑन विच वी आर गोना सेलिब्रेट इट? द डेट इज 30th August.
Moving on to the next question. So the fourth progress report on the Poshan Abhiyan has been released by which of the following ministries or organization? तो यहाँ पर फोर्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट लॉन्च की गई है पोषण अभियान के ऊपर. आपको मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसको लॉन्च किया है. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज नीति आयोग. तो नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च किया है. ठीक है, जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में कौन सी स्टेट्स है जो लीड कर रही हैं, सो हियर इट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात विच आर लीडिंग इन द ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन at the national level in year 2020 of the पोषण अभियान. So पोषण अभियान को भी guys हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं in the upcoming slides. Do not worry about it. Let's move on to the next question. The next question is on the which of the following has been declared as the best aspirational district in India. See, India का best aspirational district किसको मिला है? Very very important. You can see that RBI Grade B officer के phase 2 के एग्जाम में एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर. ठीक है, and guys when I talk about the right answer to this part, here the right answer is हरिद्वार. तो हरिद्वार यहां पर कौन सी स्टेट के अंदर आता है? दैट इज उत्तराखंड. तो आपको यहां पर स्टेट का नाम भी पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो इट वाज when I talk about the organization, it was declared by Niti Aayog. The district has secured the first rank in the basic infrastructure theme. ठीक है जी, moving on to the next question. So here you are going to tell me the name of the company which has constructed India's first 3D printed post office in Bangalore, Karnataka. And here the right answer is Larsen and Toubro Construction. ठीक है जी, लोकेशन क्या है जहां पर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बना है. इट इज इन बेंगलुरु, कर्नाटका. और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? दैट इज Larsen and Toubro Construction. Now guys, a very very important question, that is when is the International Day of Charity observed? और हिंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी है. दैट इज ऑफ द मदर टेरेसा फ्रॉम कैलकाटा who win Nobel Peace Prize in year 1979. So to commemorate the passing away of Mother Teresa, this particular decision was being taken by the United Nations that we will be celebrating this day as the International Day of Charity. And what exactly that date is? That day is 5th of September. ठीक है जी, I hope that this is very much clear and these are really very important key points guys that you are really gonna require to remember. Moving on to the next question. So the which of the following state governments has recently designed the India's first bio village in India? See guys, once again a very very important question here. So I'm marking the star. Quickly tell me the name of the state which has come up designed the first bio village in India. And here the right answer is त्रिपुरा. ठीक है, तो त्रिपुरा के अंदर इस विलेज को फर्स्ट बायो विलेज है और उसका नाम क्या है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, फर्स्ट बायो विलेज कौन सी स्टेट में है ये याद रखना जरूरी है, बट उस विलेज का नाम भी आपको पता होना चाहिए. दैट इज दसपारा. ठीक है, so that is the name of that village. Let's move on to the next question. Now the next question is, as per a study published in the scientific journal Nature Climate Change, India's climate pledges rank dash in terms of ambition and dash in terms of compliance. See, यहां पर आप देख सकते हो गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो यहां पर दो ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको यहां पर अलग अलग टर्म्स में इंडिया की रैंक क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी, तो यहां पर जब हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन इट वाज 4th, व्हेन आई टॉक अबाउट इन कंप्लायंस इट वाज 5th. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इसको टॉप किसने किया है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट इज यूरोपियन यूनियन हैज टॉप्ड इन बोथ द टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, नाउ गाइस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट इज नाउ यू आर गोना टेल मी द एडिशन, that what exactly is the edition of the Rashtriya Poshan Ma 2022 which will be organized by the Minister of Women and Child Development from 1st to 30th September. See guys, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन निकल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी मिनिस्ट्रीज को सेलिब्रेट करती है? दैट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Second चीज is what exactly is the duration of that राष्ट्रीय पोषण माह? It is 1st to 30th of September. And वो एडिशन कौन सा है? When I talk about the edition, it is basically 5th edition. ठीक है जी, ऑर्गेनाइज किसने किया? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 1st to 30th September is the date with which this Rashtriya Poshan Ma will be celebrated. Now let's see that what exactly are the other important points. तो जब हमने बात की थी पोषण अभियान की, तो what exactly पोषण stands for? Whenever you find such kind of acronyms, you are gonna require to remember that what exactly is the full form of them. ठीक है जी, तो पोषण की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान. उसका एम क्या है? दैट इज टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन अ मिशन मोड. इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन के चैलेंज को मिशन मोड में एड्रेस करने के लिए ये पोषण
अभियान को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रिगर द पोषण माह। पोषण माह हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 to 30 सितंबर। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं इस साल की, तो दिस ईयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय पोषण माह इज टू ट्रिगर द पोषण माह थ्रू ग्राम पंचायत एज अ पोषण पंचायत। तो पोषण पंचायत रेफर किया जा रहा है ग्राम पंचायत को, विद द की फोकस ऑन महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। सो गाइस, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर रियली गोना रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गाइस, now we are done with all the top 50 MCQs from the first week of September 2022 from the fast track video session of the last week. So I hope that now you are done with this particular session. Now this is the time you are going to tell me that what exactly was the score out of 50, and do not forget to tell me your scores in the comment section. And if you are having any kind of queries, you can drop us a mail at hello@edutap.co.in. You can comment your queries in the comment section as well, and you can also call us at 8146207241. So guys, I really believe that this session was really useful and fruitful to all of you. Wish you all happy learning.